बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो बोर्ड के पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन साइंस, व्हाई देयर इज नीड टू क्लासिफाई साइंटिफिक नॉलेज। आंसर, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ साइंस, द नॉलेज, साइंस क्या है? द नॉलेज विच इज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस। व्हाई देयर इज नीड टू क्लासिफाई, नीड टू क्लासिफाई, साइंस को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? विद द पैसेज ऑफ टाइम scientific information increased manifold, and this enormous scientific knowledge was then classified into different branches like physics, chemistry, bio and mathematics. इसका आंसर पहले क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थॉट्स ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम अबाउट साइंस। आंसर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अब्दुल सलाम साइंटिफिक नॉलेज इज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। ये उनके अकॉर्डिंग जो था साइंस के मतलब जो उन्होंने बात की थी, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द नेचर। या ये क्वेश्चन इस सेंस में भी आ सकता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी से क्या फ़ायदा हासिल होता है? इसका आंसर है, टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर it is essential to study the structure, function and related aspects of living organism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड एस्पेक्ट्स को स्टडी करना, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन स्टडी करना, ऐसा करने से नेचर को समझा जा सकता है और अप्रिशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पार्ट है क्वेश्चन का, स्टडी ऑफ living organism provides information and remedies to human problems regarding health, food and disease. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी से हमें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी, it deals with the study of form and structure of living organism. For example, it includes study of physical features like shape, color, etc. Anatomy, this study of internal structure of living organism. It includes study of cellular and tissue composition of biological structure. Next question है, define molecular biology. Answer, it deals with the study of molecules of life. For example, water, protein, carbohydrates and lipids. Next question, what do you mean by genetics and inheritance? Genetics, the study of genes and their role in inheritance is called genetics. Inheritance, inheritance means the transmission of characters from parents to offspring. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉसिल्स। व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल कोल, और आप इसकी दूसरी एग्जाम्पल डायनासोर भी लिख सकते हैं। What are the next question? What are the parasites? Give example. Parasites. Answer, the organisms that take food and shelter from living host and in return harm them. For example, bacteria, virus, lice, etc. Next question. Define biotechnology. It deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. For example, synthesis of human insulin.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फार्मेकोलॉजी. It is the study of drugs and their effects on systems of human body. ड्रग्स की स्टडी और उसका ह्यूमन की बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी को हम फार्मेकोलॉजी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे आप कॉमन मेडिसिन यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल यूज एज पेन किलर. आपको पता है जब आप पैरासीटामोल यूज़ करते हैं तो ये आपकी पेन को रिलीफ देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the major biological issues today? The major biological issues are as follow. Number 1, human population growth. Number 2, infectious disease. Number 3, addictive drugs. Number 4, environmental pollution. Next question हमारे पास आता है, How would you define interdisciplinary sciences? Interdisciplinary sciences को define करते हैं, each branch of science has relationship with all other branches. This forms the basis of interdisciplinary sciences. For example, study of basic metabolism of photosynthesis and respiration involves the knowledge of chemistry. Next question है, define biophysics. It deals with the study of principle of physics which are applicable to biological phenomena. For example, there is similarities between working principle of liver in physics and limbs of animal in biology. Answer. Next question, define biometry या biomathematics. It deals with the study of biological processes by using mathematical techniques and tools. ये definition इसकी हो गई. For example, to analyze data, biologists apply mathematical rules. किसी भी डाटा को एनालाइज करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट हैं वो मैथमेटिकल रूल्स यूज करते हैं. इसको हम बायोमेट्री कहते हैं या बायोमैथमेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन बायोजियोग्राफी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in different geographical regions of world. This is called biogeography. इसकी importance बाजुकात क्वेश्चन पूछ लेता है, give the importance of biogeography. तो इसकी importance है, it applies the knowledge of characteristics of particular geographical regions to determine characteristics of living organism found there. इससे हम geographical regions की करेक्टरिस्टिक्स का भी पता चला लेते हैं जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बायो इकोनॉमिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू. यानी बिजनेस के लिहाज से जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो उसे बायो इकोनॉमिक्स की टर्म में काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स. ये इसकी एग्जाम्पल भी है और इसकी इंपॉर्टेंस भी है. किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एग्रीकल्चर. डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट. एग्रीकल्चरिस्ट वो होते हैं जो एग्रीकल्चर को स्टडी करते हैं. इस क्वेश्चन में कहता है एग्रीकल्चर को डिफाइन करना है और उनका उसमें एग्रीकल्चरिस्ट का रोल क्या है. डेफिनेशन. आंसर. The profession deals with the food, crops and animals which are source of food. This is called agriculture profession. Role of agriculturist. An agriculturist work for the betterment of crops like wheat, rice, corn, etc. An animal like cow, buffalo, from which we get food. From which we get food. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डिफाइन हॉर्टिकल्चर.
डिफाइन हॉर्टिकल्चर, गिव द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट। ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो हॉर्टिकल्चर प्रोफेशन का आंसर, इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। रोल ऑफ हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट work for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। ये इनका रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एनिमल हस्बेंड्री। आंसर, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड with care and breeding of domestic animals, for example cattle, sheep। एग्जाम्पल मस्ट है साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्मिंग, गिव एग्जाम्पल। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट फार्म, पोल्ट्री फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, नेम द राइटिंग्स ऑफ अब्दुल मलिक अस्माई with meanings। Answer, his famous writings are as following. Number 1, Al-Abil meaning camel, Al-Khel meaning horse, Al-Wahush meaning animal, Khalqal Insan इसका मतलब होता है इंसान की तहलीक। ये इसकी फेमस राइटिंग्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेम दी professions that can be adopted after Bachelor of Zoology। Very important question। Following professions that can adopt after zoology: number 1, fisheries; number 2, farming; number 3, forestry। Next question है, describe the services of Jabir bin Hayyan and also write his books। इसकी कंट्रीब्यूशन या सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब होता है हिदमात। नंबर 1, ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री, 1 कंट्रीब्यूशन। सेकंड, ही आल्सो रोट नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन्होंने प्लांट और एनिमल्स पे बहुत सारी बुक्स लिखी। बुक्स के नेम है अल नबातात, अल हैवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायो एलिमेंट्स, enlist them। Bioelements, the elements that take part in making the body mass of living organism are called bioelements। There are 16 bioelements। Only 6 bioelements makes 99% of total mass। वो कौन से 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो 99% टोटल मास बनाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। अदर 10 मेक्स 1% ऑफ टोटल मास। जो 10 एलिमेंट्स हैं जो 1% मास बनाते हैं उनमें है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, आयोडीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको डिफाइन भी पूछ सकता है और डायरेक्ट बायो एलिमेंट्स के नेम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल एंड मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल, द मॉलिक्यूल हैव लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रोमोलिक्यूल। These can easily pass through cell membrane, for example carbon dioxide, oxygen, glucose, water। Macromolecule, the molecule have high molecular weight, they cannot pass through cell membrane, for example lipid, starch, protein। Next question है हमारे पास, name the organs which make to form digestive system। Digestive system is formed by following organs, for example oral cavity, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas। Next question, why organ system level is less complex in plant than animal? Very important question। Answer, the organ system level is less complex in plant than animal because there is greater range of functions and activities in animal। like कौन कौन सी एक्टिविटीज है? लोकोमोशन, एनिमल लोकोमोशन
कर सकते हैं, प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते, ना ही कर सकते हैं देन प्लांट्स। दैट इज वाई नेचर ने इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम वेरी कॉम्प्लेक्स रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, गिव द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एन इंडिविजुअल और व्हाट इज इंडिविजुअल लेवल। आंसर, different organ and organ system are organized together to form a whole organism called individual. For example of coordination, example of coordination क्या है? When a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscle are working but also there is increase in respiration and heartbeat rate. जब कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल किसी एक्सरसाइज में एंगेज होता है तो सिर्फ उसके मसल ही वर्क नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके अंदर रेस्पिरेशन और हार्ट बीट भी एक्टिवेट हो जाती है, यानी एक वक्त पे कई सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, गिव द एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेशन इन इंडिविजुअल, या हाल ही ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ पॉपुलेशन डिफर फ्रॉम कम्युनिटी। Population, group of organism of same species living in same place at same time is called population. For example, number of students in biology class. Community, group of organism of different species living in same place at same time. For example, forests have different species at forest have different species at same place at same time. Next question, difference between simple and complex community. Very important question. Simple community. In simple community, number and size of population is limited. For example, Falun log with various population under it. Complex community. In complex community, number and size of population is unlimited. For example, forest community, ponds community. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू नो अबाउट स्पीशीज एंड हैबिटेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पीशीज, इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। For example, lion is a species, tiger is a species, cat, human, etc. Habitat, the area of environment in which organism lives. वो एरिया environment का जहाँ पे organism रहते हैं उसे habitat कहते हैं। For example, water is the habitat of fishes. Next question, what do you know about biosphere and ecosystem? Biosphere definition, the part of earth inhabited by organisms. Community is called biosphere. Biosphere constitute all ecosystem. Ecosystem, the area where living organism interact with the non-living components of environment. वो एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग कंपोनेंट से रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। It is also called zone of life on earth. Very important question. Next question, what is colonial type of organization or what is Volvox? Answer, in colonial type of organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor. इकट्ठे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं लेकिन उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। ईच ऑर्गेनिज्म इन कॉलोनी डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर वाइटल रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल, वॉल्वोक्स। ये अलग से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वॉल्वोक्स। वॉल्वोक्स इज ए ग्रीन एल्गी और फ्लैजेलेटेड colonial organism. Hundreds of volvox makes colony. Like this diagram, these circles shows volvox and this one is whole habitat where they live, volvox colony. Next question,
गिव द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टाइग्रीना। मस्टर्ड प्लांट जिसे सरसों का पौधा कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ मस्टर्ड प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 1, द प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज वेजिटेबल्स। मस्टर्ड प्लांट को हम वेजिटेबल्स के तौर पे यूज करते हैं। नंबर 2 इंपॉर्टेंस, द सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। इनसे सरसों का ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर, vegetative organs. The organs which do not take part in sexual reproduction are called vegetative organs. Example, root, stem, leaf. Reproductive organ, the organ which take part in sexual reproduction. For example, flower. Flower is the vegetative organ. यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी बोर्ड का पेपर में से क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, चैप्टर नंबर 2 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।